ریاست کا وزیر داخلہ خود بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ عمران خان کی کال پر پورا ملک باہر نکلا، الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ شیخ رشید کی عبوری ضمانت منظور ہونے کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، میرے خلاف بیان دیا گیا، بتایا جائے سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دہشت گرد ہے جو ہم پہ بغاوت کے اور توڑ پھوڑ کے اور یہ مقدمے کر رہے ہیں۔ کل عمران خان کی کال پر کس طرح قوم نکلی ہے، سخت بارش میں بھی نکلی ہے۔ یہ جو چور دروازے سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ میں اردو میڈیم کا ہوں، میں کوئی برکلے، ہارورڈ، ایسیکس یا سیسکس سے نہیں پڑھا، لیکن میں منتظر ہوں یہ بتایا جائے کہ کانسپریسی میں اور مداخلت میں کیا فرق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اینٹی کرپشن کیسز سے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے اینٹی کرپشن پنجاب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی 30 جون تک گرفتاری سے روک دیا ہے۔ عدالت کے باہر عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو، کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جھوٹے کیسز دائر کر رہی ہے، بدلے کی سیاست زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے اینٹی کرپشن پنجاب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی 30 جون تک گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت کے باہر عثمان بزدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حکومت جھوٹے کیسز دائر کر رہی ہے، بدلے کی سیاست زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ سکتی۔ کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں جو 2 FIRs ہیں وہ میرے اور میری فیملی کے اوپر کاٹی گئی ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور میں رات ہی مجھے پتہ چلا ہے، اور آج میں یہاں ہائی کورٹ آیا ہوں اور اپنی بیل بیفور اریسٹ میں نے کرا لیا، اور میں انشاءاللہ اس کیس کو فیس کروں گا۔ عثمان بزدار پر ڈیرہ غازی خان محکمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں 900 کنال اراضی کی منتقلی کا کیس درج ہے۔ دن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد دیکھیے بڑے ایوان میں بڑی بیٹھک، شہباز کو مستقل استثناء، اور وزیرستان میں اندھوناک قتل۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین نے MOU پر دستخط کر دیے۔ دونوں جماعتوں نے آپس میں سیاسی تعاون اور ساتھ مل کر چلنے کا عزم کا اظہار کیا۔ 4 رکنی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو بیان میں کہا، دینی حلقوں میں تحریک انصاف کو پذیرائی ملنا خوشائند ہے۔ ہم نے پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ساتھ مل کر چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ آج راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں مجلس وحدت المسلمین کا ایک وفد، نمائندہ وفد، جس میں ان کے 4 صوبوں کے صدور، سیکرٹری جنرل موجود تھے، اور کی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ہم نے مل کر ایک MOU پر دستخط کیے ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی طور پر ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور مل کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری جو دینی حلقے ہیں ان میں تحریک انصاف میں جو آج پذیرائی مل رہی ہے، یہ بڑی خوشائند ہے۔ انشاءاللہ مل کر پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ہم نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 240 ضمنی انتخاب میں ہنگامہ آرائی پر الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا۔ ریٹرننگ آفیسر، SSP کورنگی اور DMO کو طلب کر لیا گیا۔ پرتشدد واقعات کی رپورٹ بھی مانگ لی۔ PP 167 میں فائرنگ اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیدواروں کو بھی دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی اور بلدیاتی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فوج سے مدد طلب کر لی۔ چیف الیکشن کمیشن نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا کہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ انتخابات میں پاک فوج کے تعاون کی تعریف بھی کی۔ مورخ لکھے گا، شہباز سپیٹ نے جتنی دیر میں اپنے جوتے کے تسمے باندھے، اتنی مدت میں ڈالر سپر سونک سپیڈ سے آدھی دنیا کا سفر طے کر چکا تھا۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے مہنگا ہو گیا، 210 روپے
25 पैसे पर जा पहुंचा। सोने की फी तोला कीमत 1450 रुपए इजाफे से 1,47,250 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में 363.78 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स एक मरतबा फिर गिरावट का शिकार। सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई का तूफान बपा करने के बाद अवाम को रिलीफ देने के दावे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 5 बुनियादी ग़िज़ाई अशिया को कम कीमत में फरोख्त करने का फैसला कर लिया, जिसमें आटा, चीनी, घी, तेल, दालें और चावल शामिल हैं। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का पंजाब असेंबली चौक पर एहतजाज। सैकड़ों मिनी मजदा वाला खड़ी करें और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मरकजी सदर हाजी शेर अली ने मुतालबा किया है कैंसिल शुदा गाड़ियों को बहाल किया जाए, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चालान बंद किए जाएं। मुतालबात तस्लीम न हुए तो पंजाब भर में हड़ताल की कॉल देंगे और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर देंगे। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। इजलास में अस्करी क़यादत कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देगी। मौलाना फजलुर रहमान समेत अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। की सूरत हाल, अस्करी हुक्काम सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मौलाना फजलुर रहमान समेत अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। FATF और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। तहम इजलास किस दिन होगा, तारीख का तयन अभी नहीं किया गया। अलबत्ता अहम तरीन इजलास आइंदा 3 रोज के अंदर ही किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा है कि वज़ीर दिफा ऐवान में आकर तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद मिले। कलअदम TTP के साथ अगर मुआहिदा होता है तो इसकी क्या शराइत होंगी। सुना है कि तालिबान ने फाटा का इंतजाम वापस करने की शर्त रखी है। बंद दरवाज़ों के अंदर ये फैसले नहीं होने चाहिए, ये फैसले मुल्क की आवाम ने करने हैं। को चाहिए और बिलखुसूस वज़ीर दिफा को, क्योंकि ये टॉक्स जो हैं ये हैंडल वहाँ से हो रही हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि वो हाउस में आएँ और हाउस को जो है वो कॉन्फिडेंस में लें कि TTP के साथ जो है वो क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुआहिदा TTP के साथ अगर होता है उनकी क्या शराइत हैं, क्योंकि जो उनकी एक पेटेंट शराइत है जिस पे वो सुना है मीडिया के ज़रिए कि वो अड़े हुए हैं, वो है कि फाटा का रोल बैक। तो ये तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जनाब चेयरमैन, का फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम को करना है और ये फ़ैसला बंद दरवाज़ों के अंदर बैठ के नहीं किया जा सकता। दबाव के बावजूद गन्ने की कीमतें कम नहीं की। एथनॉल टैक्स लगाया जिससे मेरे खानदान को 2.5 अरब रुपए नुकसान पहुंचा। पंजाब में करोड़ों रुपए के नाले बनवाए। काबीना की मंजूरी के बगैर किसी प्रोजेक्ट में फंड्स नहीं लगाते। शहबाज शरीफ की अदालत में दावे। जज को अपने तरक्याती कामों से मुताल्लिक किताबचा दे दिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में मुलजिम शहबाज शरीफ का वावेला। एहतसाब अदालत ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब के वकील की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त की मुखालिफत। शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में भी मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासतदानों के असासों की मालूमात आम कर दी। अरकान पंजाब असम्बली के असासों में अलीम खान अमीर तरीन रुकन निकले। 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। तफसीलात जारी। अलीम खान अमीर तरीन रुकन निकले। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात के मुताबिक अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। दूसरे नंबर पर हमजा शहबाज के 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासे हैं। वजीर आला पंजाब के 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर भी पाए गए। हमजा शहबाज की 3 ज़रई जमीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख है। हमजा ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज भी जाहिर किया हुआ है। हमजा शहबाज
अब्बास की पहली अहलिया मेहरुन्निसा 50 लाख रुपए के असासों की मालिक है, जबकि दूसरी अहलिया राबिया हमजा 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। मुराद रास 38 लाख रुपए, मियां महमूद रशीद 18 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए के साथ 6 करोड़ 78 लाख रुपए की गैर ज़रई जमीन और 99 लाख मालियत की फ्लोर मिल के मालिक हैं। परवेज इलाही की अहलिया 10 करोड़ रुपए असासों की मालिक है। वैस लगारी 44 करोड़ रुपए, हिना परवेज भट्ट ने 9 करोड़ 94 लाख के असासे जाहिर किए। हिना परवेज भट्ट को 2 अदार दोस्त मोहम्मद मजारी 2 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए हरभजन का मुंह बंद और कराची बारिश के लिए तैयार है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, पंजाब में तवानाई बहरान के बायस आज से दुकानें रात 9 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा, अब 9 बजे मार्केटें बंद करने का कहा गया था, तकरीबन 10 बजने वाले हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि अहकामात हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किए गए थे, उसके बाद हमने देखा कि आज जैसे ही 9 बजे तो जितने इलाकों के मुतलका इलाकों के SHOs हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी जानिब से मार्केटों का दौरा किया गया। हम इस वक्त हाल रोड मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि 9 बजते ही AC सिटी अदनान रशीद और SHO किला गुजर सिंह मुदस्सर खान जो है वो यहाँ पर अपनी टीम के हमरा पहुँचे और दुकानें जो है उन्होंने बंद करवाई। आज पहला रोज़ था, कुछ रेजिस्टेंस भी हमने देखी ताजरों की तरफ से, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि आज के दिन जो मुतलका हुकाम है वो वार्निंग दे रहे हैं और अदनान रशीद अगर तो दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। मोइन जुबैर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मौसम की बात करें तो घनघोर घटाएं, तेज हवाएं और बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जैकबाबाद, घोटकी, मीरपुर माथेलो, खैरपुर, शिकारपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले चंद दिनों तक कोई खास बारिश का इम्कान नहीं। गर्द आलूद हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिर वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।